For decades, the rural areas of Saurashtra had remained bereft of two things: water and power. And just as the election campaign of both the BJP and Congress were to kick into high gear, in Saurashtra came a picture that has now become fodder for some of the sharpest exchanges on this election campaign. Because that picture is of Rahul Gandhi, who is the face of the Congress, putting his hand on the shoulders of Medha Patkar, the lady who for long opposed the Narmada Dam, the dam whose waters finally brought water to this parched region. If there are two things that the rural areas of Saurashtra were most deprived of, it was water and power. And just as the election campaign in Saurashtra by the BJP and Congress was heating up, came a picture that has become fodder for some of the sharpest exchanges on the campaign trail. And that picture was of Rahul Gandhi walking with Medha Patkar in his Bharat Jodo Yatra in Maharashtra. The same Medha Patkar who opposed the Narmada Dam, whose waters today irrigate this parched land. Farmers in this area of Saurashtra have benefited the most by the water from the Narmada Dam, a project that Medha Patkar campaigned against for a very long time. No wonder then that Prime Minister also asked during his whirlwind tour of Saurashtra assembly seats as he campaigned just a few kilometers away from these cotton fields. Will Gujarat seek answers from those who hug people who blocked Saurashtra's waters? આ નર્મદા અમારા કચ્છ કાઠિયાવાડના લોકોને પીવાના પાણી માટેની એક જ જગ્યા હતી. એ નર્મદાનું પાણી 3 દાયકા સુધી રોકી રાખ્યું. કોર્ટ કચેરીઓમાં ધસડી ગયા, મુસીબતો કરી અને પાણી ન પહોંચેના માટેના બધા આંદોલનો કર્યા, બદનામ કર્યું ગુજરાતને. દુનિયાભરમાંથી કોઈ પૈસા ના આપે ગુજરાતને, વર્લ્ડ બેંક પૈસા ના આપે, આવું બધું કર્યું. એ બહેન જે આંદોલન ચલાવતા ને એમના ખભે હાથ મૂકીને ગઈકાલે કોંગ્રેસના એક નેતા પદયાત્રા કરી રહ્યા હતા. જરા કોંગ્રેસ વાળા વોટ માંગવા આવે ત્યારે પૂછજો કે આ નર્મદા વિરોધીઓના ખભે હાથ મૂકીને તમે દોડો છો. The water crisis may have been mitigated, but other concerns remain in rural Gujarat. Primary among them is the rising prices of essentials and not enough return on investment for the farmers. Even those who ultimately profess their support for BJP confess the mehengai is pinching. The rural seats of Saurashtra, agrarian distress is a very real issue, especially for those who are doing cotton cropping. आप बताइए, आप यहाँ कपास की खेती करते हैं, आप अभी खुश हैं सरकार से? नहीं, खुश नहीं है हम. यही सरकार से खुश बिल्कुल नहीं है. किस वजह से? यहाँ पे पिछले साल पानी आया था तो सब फसल नाश हो गई थी, सब फसल, क्योंकि यहाँ पे पानी था, वहाँ से नदी है, यहाँ तक पानी था, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं दिया हमको. This is, by the way, the Jamnagar rural seat where you've got a four-cornered contest happening between the BSP, Aam Aadmi Party, Congress and the BJP. तो अभी चुनाव में आपको कौन सी पार्टी बेहतर लग रही है? आम आदमी पार्टी. किस वजह से? यहाँ पे दिल्ली में, पंजाब में हमने सब देखा है सोशल मीडिया पे, तो ये काम बहुत अच्छे लग रहे हैं हमको. इसलिए खेडूत फार्मर को भी अच्छा काम करते हैं आम आदमी पार्टी. पंजाब में मैंने सुना यहाँ पे जયારે गेहूं की फसल होती है तब पंजाब से लोग आते हैं हार्वेस्टर लेके, तो वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम है आम आदमी पार्टी का. पर यहाँ पर कौन कैंडिडेट है जानते हैं आप आम आदमी पार्टी? हाँ, यहाँ पे हमारे प्रकाश दोंगा साहब है, वो एडवोकेट है हमारे एरिया में. तो वो नई आदमी है लेकिन एडवोकेट है, तो अच्छा ही काम करेगा. आप बताइए, अभी यहाँ पे कौन से इश्यूज हैं? अभी इधर जो गांव में सड़क का इश्यूज है और वो सब जो का बीमा है वो बीमा भी नहीं मिलता. ऊपर सरकार जो बीमा ऊपर से अप्लाई करती है लेकिन खेडूत के पास कुछ बिल्कुल एक भी रकम नहीं, उसके अमाउंट पे मिलती भी नहीं है.
इसलिए अभी गांव के लोग ऐसे ही बोल रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी आएगी वो सही रहेगा। पर उन्होंने किसानों के लिए क्या बोला है? अभी किसानों के लिए ये बोला उसका जो बीमा है वो आएगा तो वो भी माफ कर देंगे उसका, और खेत में भी उसको प्रोत्साहन मिलेगा दूसरी कहीं चीजों से। बिजली है वो 10-12 घंटे कर देंगे। वो 8 कलाक आती है, आज ही आप आई है तो दोपहर 12 बजे चली गई, टाइम पूरा नहीं हुआ लेकिन चली गई, अभी तक आई नहीं है। वो रात को देंगे, रात को हम क्या करेंगे? पर भाजपा कहती है जैसे कि वो नर्मदा प्रोजेक्ट था, उस सब किसानों को पानी मिला है, उससे अब घर घर पानी बिजली आ रहा है। अभी उसको उधर वो नर्मदा का पानी मिल गया, लेकिन उधर जेएमसी वाले कोई कॉरपोरेशन वाले इतना नहीं करते हैं कि जो टाइम टू टाइम दे सकते हैं। उसका जो निचला वो लेवल है सब बराबर नहीं है। नहीं, 5 साल से नर्मदा आ गई है, यहाँ पे नदी है, लेकिन 5 साल में अभी तक पानी नहीं आया नदी में नर्मदा का। जो अभी चुटनी आई तो अभी छोड़ा है उसने, अभी चालू है पानी। चुटनी आई है तो ये लोग ऐसा काम करते, बाकी 5 साल में एक ही बार नहीं छोड़ा नर्मदा का पानी। इस वक्त आपको कौन सी पार्टी जो है उसमें उम्मीद लग रही है और क्यों? अभी आम आदमी पार्टी की उम्मीद लग रही है, क्योंकि जो सरकार बदलेगी तो पता चलेगा कौन सरकार कैसा काम कर सकती है। आपको कौन सी पार्टी बेहतर लग रही है? हमको भी वो आम आदमी पार्टी बेहतर लग रही है। पर यहाँ पर सरकार जो है वो तो भाजपा की है, आपको लगता है आप पार्टी की सरकार बन पाएगी? हाँ, बन पाएगी। आम आदमी पार्टी बन पाएगी। और कांग्रेस? कांग्रेस नहीं बनेगी। क्यों? कांग्रेस के तो यहाँ पर विधायक पहले रहे हैं, तो कांग्रेस से उम्मीद क्यों नहीं है? नहीं, कांग्रेस तो यही चलती ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस में वो क्या होता है कि लड़ना और ऐसा करना कांग्रेस में बहुत होता है, इसलिए कांग्रेस तो नहीं चाहिए। मयूरी बताइए कि इस बार आपको इलेक्शन में कौन सी पार्टी बेहतर लग रही है? ऐसे तो हम हर साल भाजपा को ही वोट देते, इस बार भी भाजपा का ही वोट देने का ही सोचा है। किस वजह से? उसका काम अच्छा है और वो सब काम करती है, रेगुलर है, इसलिए। पर आपका यहाँ पर खेत भी है, खेत में कुछ लोग बोल रहे हैं कि पानी की प्रॉब्लम है, सही प्राइस नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, उसका थोड़ी दिक्कत है, बट वो भी प्रॉब्लम धीरे धीरे सोल्व हो रही है, इसलिए भाजपा। और आम आदमी पार्टी? आम आदमी की पार्टी काफी अच्छा है वैसे तो, अभी वो भी सब कर रहे हैं कि बिजली पानी सब पहुंचाएंगे, ऐसा वो भी ठीक है। Saurashtra is 78% rural and is dominated by farmers who grow cotton, groundnut and pulses among other things. In 2017, other than the Patidar agitation, it is the rural blowback that had cost the BJP. Now, has the mood shifted? In 2012, the Congress had won 57 of the 140 seats in rural areas, while the BJP had bagged 77. In 2017, the Congress's total shot up to 71. The BJP, however, went down to 63. This is the gap that the Saffron Party now wants to close and also ensure that the space is not ceded to new entrants like the Aam Aadmi Party. In the assembly constituencies within Jamnagar, the Congress and BJP have been evenly placed. Historically, each one of them has periodically tasted success. Here, in addition to the Aam Aadmi Party, which has created quite a bit of hava, the fourth angle is provided by the BSP thanks to the large Dalit population in these seats, which is why campaigning is hectic, relentless, punishing and carries on well into the night. If rural Jamnagar is about mitigating farmers' anger, then urban is about bucking anti-incumbency. In a repeat of what is seen across urban seats that BJP holds, which are seen as its stronghold, the party has decided to spring a surprise. Out with the old and in with the new. And the face of that in Jamnagar is Rivaba Jadeja. First-time election candidate and wife of cricketer Ravindra Jadeja, she replaces incumbent legislator Dharmendra Singh M. Jadeja, better known as Hakuba. In this seat, the largest population is that of Dalits, followed by Rajputs, Muslims, Ahirs and Hindi-speaking people, which is why it makes a happy hunting ground for the Aam Aadmi Party and the Congress as well. It's a very big responsibility and it's almost
could become a crown of thorns also. Rivaba Jadeja is fighting elections for the first time. Also comes with the legacy of having a very famous husband. But now you're going to fight elections on the BJP symbol. You're a first-time politician. आपको कोई क्यों वोट दे? First of all, I would like to thank our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, Amit Shah ji, JP Nadda ji and डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो हमें अभी गुजरात का जो विकास आगे बढ़ रहा है, उन पथ को आगे बढ़ा रहे हैं ऐसे हमारे माननीय सीएम भूपेंद्र भाई पटेल जी, CR पाटिल जी और जामनगर की जनता, जामनगर का भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन, बिकॉज सेंट्रल लेवल से मुझ पे जो ट्रस्ट किया गया है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों और गुजरात और जामनगर की जो जनता है उनके ट्रस्ट के आधार पर मुझे उम्मीदवार चुना गया है। तो डेफिनेटली और शुरुआत कहीं से भी हो एक भाव रहता है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं देखेंगे कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी समाज सेविका हो या कोई भी फील्ड में आप देखें, एक बार शुरुआत करनी ही करनी है और दैट्स इट। और दूसरी बात जो आपने बोला कि वोट क्यों दे, तो वोट मुझे नहीं देना है, वोट कमल को देना है, वोट नरेंद्र मोदी जी को देना है, वोट भारतीय जनता पार्टी को देना है। पर अगर वोट भारतीय जनता पार्टी को ही देना है तो काम की उम्मीद तो आपसे होगी। आपकी एनीवे बहुत हेक्टिक लाइफ रहती है, आपको कभी टूर पे जाना होगा, आप एक सेलिब्रिटी वाइफ भी हैं, लोगों को फिर विश्वास होगा उस बात पे? जी डेफिनेटली। अगर आप थोड़ा पीछे मैं आपको लेके चलूँ, इन 2019 आई जॉइन बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। फ्रॉम दैट ईयर टिल टुडे मैंने जामनगर के आसपास के 200 से ज्यादा गांवों की मुलाकात ली है। स्पेशली आई एम वेरी मच, मैं आपको एक बात प्राउड बात से बता सकती हूँ कि आई एम द वाइफ, आई एम द ओनली वाइफ जिन्होंने बहुत ही लेस टूर अटेंड किया है, जो अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही कम टाइम, इवन आई गॉट क्रिटिक ऑन दिस लाइक टॉपिक कि आप क्यों नहीं हैं, हम आपको IPL में नहीं देखते, आप गाँवों में घूम रही हैं, आप सोशल कोर्स के माध्यम से लोगों से परिचय बना रही हैं, स्त्री सशक्तिकरण के कार्य कर रही हैं। तो डेफिनेटली कि मेरा जो एक सेवा का जो माध्यम है अब वो लिमिटेड की बजाय मैं एक मास को रिप्रेजेंट कर सकूंगी, एक मास तक मैं पहुंच सकूंगी, जरूरियातमंद जितने भी परिवार हैं, भाइयों बहनों हैं, वहां तक मैं पहुंच सकूंगी। तो वही एक मेरा टारगेट है, वही एक मेरी सोच है। आपके घर के अंदर भी काफी कलह चल रहा है, आपकी बहुत सिस्टर इन लॉ के बारे में बोला गया है, वो कांग्रेस में, आप बीजेपी में। मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, कलह चल रहा है तो दो पार्टियों के बीच चल रहा है, दो फैमिली मेंबर्स के बीच में नहीं चल रहा है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देन हमारी जो हाथ की उंगलियां हैं वो भी एक समान नहीं है। तो उनकी विचारधारा किसी अलग पार्टी से जुड़ी हुई है, उनका माइंडसेट किसी अलग पार्टी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, तो डेफिनेटली उनकी चॉइस है। मेरी चॉइस है भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं पे चलना, हमारे सेंट्रल नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना। तो दैट्स इट। क्योंकि आप महिला हैं और टेक्निकली हमेशा सवाल ये महिलाओं से पूछा जाता है महंगाई को लेकर के, सिलेंडर को लेकर के, तो आपसे भी महिलाएं पूछती होंगी वोटर कि 1000 रुपए से ज्यादा महंगा सिलेंडर हो गया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं सिलेंडर सस्ता कर रही है? देखिए मैडम, ये एक इकोनॉमिकल जो प्रश्न आप बोल रही हैं, तो ये हमारे देश का सिचुएशन है। तो अभी आपने जैसे बोला कि आपका हेक्टिक स्केड्यूल है, तो मैं कहीं विदेश में घूम के भी आई हूँ। आफ्टर कोविड के बाद जो सिनेरियो है वो सिर्फ भारत देश की बात नहीं है। मैं उनको समझाती हूँ कि अगर आप बाहर निकले, भारत देश से अगर आप आगे बढ़ते हैं, आप बाहर निकलते हैं, तो वहां तो महंगाई और भी ज्यादा है। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, मैं उनको लोकली समझाती हूँ कि अगर आप जानना चाहते हैं तो आप एक एलिगेशन लगाने से पहले डेप्थ तक जाए, ठीक है? तो वो उन पूरा इकोनॉमिकल सिनेरियो में उनको एक्सप्लेन करती हूँ, देन दे कन्विंस्ड कि ठीक है चलो फिर हमारी हालत तो बेहतर है। क्योंकि यूरोप में अभी एक सर्वे हुआ था कि वहाँ की पब्लिक है, अमेरिका की जो बहुत ही मेट्रो सिटीज हैं, वहां से लोग अपना सिटी छोड़ के गांव में स्थानांतर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ड्यू टू ये इकोनॉमिकल जो क्राइसिस आफ्टर कोविड सिचुएशन हुआ उसकी वजह से। तो मैं पूरा उनको वैश्विक फलक पे लेके जाके इलेबरेट करती हूँ कि हमारी इंडिया की जो पोजीशन है, स्पेशली गुजरात की और सौराष्ट्र की जो पोजीशन है, वो फा बेटर है। आखिर मैं आपसे पूछूंगी कि जो वोट पड़ेगा वो आपके नाम पे पड़ेगा, आपके पति के सेलिब्रिटी होने के नाम पे पड़ेगा, मोदी जी के नाम पे पड़ेगा या कमल पे पड़ेगा? जी डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी के जो सेंट्रल नेतृत्व है वो सभी संगठन के साथियों के नाम पे ये वोट जाएगा। और स्पेशली विश्वास है गुजरात की जनता को कि हमारा जो नेतृत्व है बहुत ही सेफ हैंड में है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि विश्व फलक पर जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जिस हिसाब से भारत की छवि विश्व फलक के ऊपर रिप्रेजेंट किया है, विश्व फलक के ऊपर जैसे हमारा भारत देश अभी उभर रहा है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग
बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट कंट्री के माध्यम से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यस कि हमारा जो वोट जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए ही जाएगा, हमारे केंद्र के जो नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र मोदी उनके लिए ही जाएगा। और ये एक एक जनता, एक एक गुजरात की जो जनता है, जामनगर की जनता है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही वोट करेगी। क्रिकेट में सेंचुरी बहुत मायने रखती है, तो सेंचुरी प्लस या सेंचुरी एंड हाफ? चांस ही नहीं है। गुजरात की जनता डेफिनेटली डिकेड से सेंचुरी प्लस में चल रही है। But Rivaba Jadeja has another battle to fight, and that is closer home. As she fights on a BJP symbol, campaigning against her is her own sister-in-law, Nainaba. A Congress office bearer, she's put party above family, hitting the streets in favor of Congress's Bipendra Singh Jadeja. नैना भाई, ये बताइए कि बहुत फोकस ये हो रहा है कि आपके घर की ही कैंडिडेट जो हैं वो बीजेपी से खड़ी हुई हैं और आप कांग्रेस के लिए प्रचार कर रही हैं, कैसे? मैं कांग्रेस में हूँ, 3-4 साल हो गए। मैं एक ओहदे पर हूँ, सेक्रेटरी हूँ, पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थी, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जिस पक्ष में हूँ वो 100% उनके लिए लॉयल रहूँ और उनके लिए काम करूँ। तो पर्सनली किसको वोट करेंगी फिर? कांग्रेस को। पर क्यों? आपकी तो खुद की जो भाभी है वो खड़ी हुई है बीजेपी पर मुझे बीजेपी विचारधारा पसंद नहीं है, वो लोगों का शोषण करती है, उनको फर्क नहीं पड़ता लोग दुख दर्द में है या नहीं है। जबकि कांग्रेस ने अभी तक काफी निचले तबकों के लोगों के लिए काम किया है। वो ऐसी सरकार नहीं है कि हाँ आपको दुख है, तकलीफ है तो उनके लिए हम सोते ही रहेंगे। आपको पता है जब कोरोना काल आया था सरकार कहाँ एक्टिव हुई थी? जितने हमारे लोकल नेता है, जो कार्यकर्ता है, वही एक्टिव हुए थे, क्योंकि हम खुद काम कर रहे थे। हम मेरे पापा को कोरोना हुआ था तब हम घर में से फोन घुमा घुमा के सबके लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे जितने लोकल नेता है, हमारे कॉर्पोरेटर है, उन लोगों ने काम किया है लोगों के लिए। अभी जितने जो हवा बनी हुई है, ऐसा कह रहे हैं कि सीधी टक्कर जो है वो आम आदमी पार्टी दे रही है बीजेपी को। देखो, हवा ये बन रही है अभी कि एक तो मेरे सामने की जो कैंडिडेट है रीवा सिंह, वो यहाँ की नहीं है, वो राजकोट की है और वो यहाँ रहती भी नहीं है। 6 महीने तो उनके हस्बैंड के साथ वो विदेशों के दौरे पे घूमती है। तो ये हवा बन रही है कि यहाँ लोकल जो सबके बीच रहे, सबके काम करे, वैसा कैंडिडेट लोगों को चाहिए जो मैं हूँ। यहाँ मैं 32 साल से काम कर रहा हूँ। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का यहाँ अध्यक्ष हूँ। इस तौर पे मैंने कोरोना काल से लेके हर जामनगर के हिस्से में मैंने काम किया है। जबकि जो आप आम आदमी पार्टी बोल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पूरे गुजरात में हर लोग जानते हैं कि ये सरकार, जो सरकार विरोधी वोट होते हैं उनका विभाजन करती है, जो और उसके लिए उसने आम आदमी पार्टी को यहाँ खड़ा किया है। यहाँ आम आदमी पार्टी 4 डिजिट के ऊपर वोट नहीं ले जाएगी। आम आदमी से बात कीजिए, यानी कि जो आम आदमी, सड़क चलता आदमी है, उससे कह रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा लग रहा है जैसे कि लड़ ही नहीं रही है, कम से कम आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है। वो तो आपको रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा। लास्ट टाइम भी यही कह रही थी, भाजपा कह रही थी 180 से ज्यादा हम सीटें जीतेंगे, 98 में सिमट गई। इस बार आप देखना वो 70 के अंदर सिमट जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। A significant third angle here is added by Karshan Karmoor, earlier with the BJP. He has served multiple terms in the municipal corporation and is confident that he will score over the caste and celebrity factor. It started as an urban party in Delhi, but this time in Gujarat, Aam Aadmi Party seems to have strategically chosen a few rural seats where candidates have been fielded in order to give challenge to the BJP. Jamnagar North is one such high-profile seat where you have Rivaba Jadeja being fielded from the BJP. आप आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, पर आपका जो इतिहास है, आप पहले बीजेपी में थे। आपको क्यों लगता है कि आप टक्कर दे पाएंगे बीजेपी? बिल्कुल इसीलिए कि मैं 25 साल पार्षद रहा, 2 बार चेयरमैन, 2 बार डेप्यूटी मेयर रहा। उसकी वजह से मैंने गांव में बहुत काम किया है, सिटी के अंदर बहुत काम किया है मैंने। 25 साल में कंटिन्यू काम करने वाला आदमी में से हूँ मैं। मेरा चेहरा पहचान वाला है। करसन कारमो जी, ये
जहां भी हम जाते हैं वहां पर ज्यादातर लोग बोलते हैं कि हम तो वोट मोदी जी को दे रहे हैं, चाहे कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाए। तो उसको आप उस इमेज को, जब मोदी जी कहते हैं कि आप नरेंद्र को वोट दीजिए ताकि भूपेंद्र काम कर पाए, तो उसको, उस नारे को आप कैसे कॉम्बैट करेंगे? देखो, नरेंद्र मोदी जी बोलते होंगे कि भूपेंद्र जी को देख के वोट कीजिए। आज गुजरात में भूपेंद्र जी को कोई पहचानते भी नहीं है, और उनके नाम पे अगर कोई सभा की जाएगी तो करो ना। गुजरात में मोदी जी को बोलो कि आप क्यों बार बार प्रचार करने के लिए गुजरात आते हो, आप भूपेंद्र जी को बोल दो ना, वो सीएम है, उन्होंने काम किया हो तो वोट मांग ले और वोट मिल जाएंगे आपको। एक बार सीएम के ऊपर आप जिसको सीएम बनाया, आपने जिम्मेदारी दी है पूरे जो गुजरात की, उनके नाम पे वोट मांग लो ना। आप क्यों बार बार जा रहे हो? आप प्रचार मंत्री हो क्या? आप अपना काम कीजिए ना, दिल्ली में बैठ के जो देश संभालो, देश का काम कीजिए। आप गुजरात में बोलते हैं कि मैं डोर टू डोर प्रचार करूंगा, ऐसी नौबत आ गई बीजेपी की इस बार के डोर टू डोर सीएम पीएम को भी जाना पड़ रहा है। ये पोजीशन आज गुजरात के अंदर बना दी है पार्टी ने। किस प्रॉमिस से वोटर के पास आप जा रहे हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी कहते हैं भाई मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं गुजरात को सब कुछ दूंगा। आप किस प्रॉमिस से जा रहे हैं? गुजरात को कुछ दिया नहीं है। हिमाचल का चुनाव आया तब ये बोल रहे हैं हम लड़कियों को स्कूटी देंगे, 2 बोतल सिलेंडर का देंगे। तो गुजरात को क्यों नहीं दे रहे हो भाई? आप 27 साल पे सत्ता में है तो गुजरात में तो आप दे नहीं रहे हो। तो वहाँ आप यहाँ, हमने केजरीवाल साहब की गारंटी लेके हम जा रहे हैं वोट मांगने, और जो काम गारंटी दिल्ली में दी थी वो पूरी कर दिया। पंजाब में जो किया था बिजली फ्री कर देंगे, 50 लाख परिवार का बिजली का बिल 0 आ गया। तो केजरीवाल साहब जो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो हो रहा है और कर रहे हैं, उनके ऊपर ये लोग भरोसा कर रहे हैं आज गुजरात में, और करेंगे। ओके, आप दिल्ली और पंजाब मॉडल की बात कर रहे हैं, जिसकी प्रॉमिस लेकर के आप गुजरात के लोगों के पास जा रहे हैं। वन थिंग दैट रियली स्टैंड्स आउट अगेंस्ट द आम आदमी पार्टी इज द फैक्ट दैट दे आर कंटेस्टिंग हियर इलेक्शंस विदाउट अ साइजेबल cadre base. Bharatiya Janata Party over several decades has got a cadre base of the BJP and the RSS, which is why let's figure out what their strategy has been like. You are from Punjab. We're just speaking of the Punjab model. You're a sitting MLA from Amritsar. Jivanjot Kaur has defeated Navjot Singh Sidhu and is a first time MLA. But what are you doing here in Gujarat? So, see, I'm in Gujarat since last 1 month now. So we've been campaigning, right? So I mean, it's been frequent visits, like 8 days campaigning in Gujarat and then going back to the constituency for a few days and juggling between Punjab and Gujarat. So I've been to different places. Like the first visit was Amreli Bhavnagar belt, in and around Amreli Bhavnagar. The second trip was in and around Dwarka. Third was in and around Somnath and then Junagadh. Finally now I am here in Jamnagar North. So people say you are up against a party with a huge cadre base. How can Aam Aadmi Party fight an election against the BJP or even the Congress for that matter? Congress has been around since independence. See, I'll be very, very clear कि गुजरात में पिछले 62 years से it's been like 35 years Congress ruled Gujarat and then 27 years BJP. लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है, क्योंकि हम नहीं बोलते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि I've been to almost now 20-25 constituencies till now. सब लोग एक ही बात करते हैं कि 27 years में हमें क्या मिला है, गुजरात को क्या मिला है। आई मीन इवन पर्सनली स्पीकिंग व्हेन आई केम टू गुजरात, तो हमारे दिमाग में भी वो इतना सारा वो जो था गुजरात मॉडल। बट लेट मी टेल यू, कुछ एक एरियाज ऐसे थे जहाँ पे हमने रात को अगर सभा की तो मोबाइल की टॉर्चेस के साथ की। देन देयर वर एरियाज जहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि अगर रात को हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा तो 3 घंटे ट्रैवल करना पड़ेगा, एंड दैट टू द्वारका, जिसको हम कृष्ण जन्मभूमि कहते हैं। और सबसे हैरानी की बात वो थी व्हेन द फीमेल्स देयर इन वन ऑफ द जनसभास इन द्वारका टोल्ड मी दैट दे डू नॉट इवन हैव अ चेंजिंग रूम फैसिलिटी इन द्वारका, जहाँ वो नदी पे होली डिप लेने जाते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट गुड हॉस्पिटल्स, व्हेन वी टॉक अबाउट गुड स्कूल्स, व्हेन वी टॉक अबाउट गिविंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू पीपल and the what आम आदमी पार्टी मॉडल इज अबाउट, तो लोगों को ये लगता है कि आम आदमी पार्टी का मॉडल अब गुजरात में भी आना चाहिए।
आप अभी गुजरात मॉडल वर्सेस आम आदमी पार्टी मॉडल की बात कर रहे थे. इंटरेस्टिंग बिकॉज द पीएम यस्टरडे ओनली सेड कि कुछ लोग हैं जो गुजरात में आते हैं बदनाम करने के लिए, उन लोगों से बच करके रहिए, ये सिर्फ बदनामी कर रहे हैं. ऐसे है कि हम क्यों बदनाम करेंगे, हमें तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, इनपुट कहाँ से आती है, जो लोग बताते हैं. ठीक है, अगर मोरबी इंसिडेंट हुआ तो वो बदनाम करने के लिए तो हम कुछ कह नहीं रहे हैं. अगर ये मैं द्वारका का एपिसोड बता रही हूँ तो वो हम बदनाम नहीं कर रहे हैं, हमने आंखों से देखा है. अगर मैं ये बता रही हूँ कि वहाँ हॉस्पिटल नहीं है तो हमने आंखों से देखा है, हमने लोगों का हाल अपनी आंखों से देखा है. सो बदनाम करने का तो कोई पॉइंट नहीं है. This three-cornered fight is a good example of what is playing out across Gujarat, with local faces being fielded by Aam Aadmi Party to take on the might of BJP and the institutional memory enjoyed by the Congress. Their lack of local cadre is supplemented by reinforcements being sent in from Punjab and Delhi, who've been camping and campaigning in Gujarat for months. But are the people biting? इधर पे कौन आगे लग रहा है? यहाँ पे तो झाड़ू वाला ही है, करसन भाई, क्योंकि वो महंगाई का उन्होंने पहले बोल के रखा कि महंगाई हम कम ही रखेंगे. और ये जो बाटला जो हम लोग पहले 550 का लाते थे, 350 का, आज उसका 1100 रुपया भरना पड़ता है. हाँ, तो झाड़ू से उम्मीद है कि वो महंगाई कम करेंगे. हाँ, महंगाई कम करेगा, कुछ तो कम होगी. हमने वादा किया है और वचन भी दिया कि हम आएंगे तो ऐसे ऐसे करेंगे, पक्का. जो दिल्ली में होता है ना, ऐसे ही होगा. लगता है झाड़ू सरकार बनाएगी? हाँ, उसका उम्मीद है. आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी. पर आपको कौन पसंद है? मोदी जी. मोदी जी पसंद है. इतना सोचना पड़ गया कि बीजेपी में कौन है? मोदी जी. मुख्यमंत्री कौन है बीजेपी के? भूपेंद्र जी. अच्छा, चलो पता आपको. यहाँ के विधायक कौन है? हमारा विधायक हकूमत आई ले तो. सब सही जवाब दिया आपने. तो चलो, आप बीजेपी के कट्टर समर्थक है, आपको कौन सही लगता है इस वक्त? मेरे को तो अगली बार आप लगता है शायद. किस वजह से? उसका प्रचार बहुत ज्यादा, उसका काम भी बताया उसने, तो क्या करेगा वो, एक बार आएगा तो पता चलेगा क्या काम करता है, कैसे आगे बढ़ता है. तो कौन सी उसकी उम्मीद है, मतलब कौन सी चीज उसकी पसंद है? उसने प्रचार बहुत अच्छा किया है, घर घर पे सभी बात भी अच्छा किया इसलिए. और यहाँ पे जो खड़ी हुई है रीवा बा, जो खड़ी हुई है, उसका भी वर्चस्व ज्यादा है सबसे, वो भी शायद जीत जाए. पर आपको पसंद झाड़ू पार्टी है. आपको कौन पसंद है? भाजपा. क्यों? अच्छा है, काम उसका अच्छा है. पर यहाँ लोग कह रहे हैं महंगाई से परेशान है. अपना नहीं है, लेकिन लोगों को अपने को नहीं है महंगाई कुछ. आपको कोई महंगाई नहीं लगती? नहीं लगती. आपके लिए सब सस्ता है? सस्ता ही है. आप 1200 नहीं देते? हाँ, दे नहीं. अच्छा, आपको तेल सस्ता लगता है? सस्ता ही है. फौरन इनको 500 रुपए दो आप. मैं क्यों दूं, लेकिन अरे आपको महंगाई नहीं लग रही, आपको सब अच्छा लग रहा है, दे दो थोड़ा पैसा. लेकिन काम करोगे कहाँ से महंगाई लगेगी. आपको कौन सही लगता है? अपना सही है भाजपा. किस वजह से? बस काम अच्छा है इसका. तो यहाँ पे तो जो विधायक थे वो बदल दिए गए हैं, तो वो विधायक बेटर थे या रीवा बा बेटर? रीवा बा. क्यों? रीवा बा खड़ी है, इसको आ जाएगी, आ जाएगी. जो खड़ा है वही सही है. हाँ, हाँ. आपको आएगा, रीवा भाई आएगा, भाजपा बीजेपी. हाँ, पर यहाँ तो आम आदमी पार्टी की भी काफी लोग बोल रहे हैं. भले बोल रहे हैं, सबका है, लेकिन बीजेपी आएगा. बीजेपी ने काम किया है. देखो अभी ब्रिज बन रहा है, 2-3 ब्रिज बन रहा है, अच्छा काम किया है. सभी जगह पर साफ सफाई बहुत बढ़िया किया है. और जो महंगाई का मुद्दा है वो तो ठीक है, महंगाई तो चलता रहता है. महंगाई तो सब जगह पर है, हिंदुस्तान में नहीं है, पूरा वर्ल्ड में है महंगाई तो. पर यहाँ पे अभी नई नई कैंडिडेट खड़ी हुई हैं पहली बार, तो उनसे क्या उम्मीद रखेंगे? उनसे उम्मीद अच्छी ही रखेंगे ना. तो
उनके चेहरे पे वोट पड़ेगा या मोदी जी के? मोदी जी के चेहरे पे, मोदी जी पका। तो फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी कैंडिडेट हो जाए। आप भाई पीछे छुपे जो हुए हो, आपको कौन सा ही लगता है? मेरे को जो अच्छा लगेगा उसको दूंगा मैं तो। वो तो ठीक है, बट लगता कौन है? तो मेरे को केजरीवाल लगता है, और भी केजरीवाल भी लगता है, भाजपा भी लगता है, जय भीम भी लगता है, सब लगता है मेरे को। आपको सब अच्छे लगते हैं, सबको वोट दे दो? मैं सबको क्यों दूंगा मैं? सबको एक को भी दूंगा ना, मेरे को जो ठीक लगा उसको दूंगा मैं। तो कौन ठीक लगता है? मैं तो झूठ नहीं कहता, तब पता चलता है कौन ठीक लगता है। देखो सबके आपके सामने बोलने में डर रहे, ये बताना नहीं चाहते कि किसको वोट देंगे। आप बताइए, आप लोग, आपको कौन सही लगता है भाई, बताइए। अरे धक्का मत दो बेचारों को, क्या हो गया, कौन सही लगता है? मत, हाँ, हमको तो जो आदमी अच्छा लगेगा। अरे वही तो पूछ रही हूँ, कौन अच्छा लगता है? अभी तो पता नहीं चला है, सब अच्छे, ये सब चुनाव होने के बाद जो सब भूल जाते हैं, तो किसको हम अच्छा समझे? अभी कुछ टाइम पे सब आते हैं, हैं चुनाव के, और बाद में कोई आता नहीं है। में क्या हो जाता है? आएगा तो सरकार बीजेपी का, पर थोड़ा सीट आम आदमी का दिखता है। हाँ, ये सीट किसका आप चाहते हैं? यहाँ तो मिक्स में है सब। देखो मैडम, ये रीवाबा के भी है और करसन भाई का भी चांस बहुत है। आपको कौन सही लगता है? सही तो दोनों लगता है, दोनों में वोटिंग होता है, दोनों को वोट देंगे हम। दोनों को वोट दोगे? दो को तो वोट दे नहीं सकते ना भाई। मैं तुम दो लेके बैठे हो वोटर आई कार्ड, कैसे दो को दे दोगे? तो किसको सही लगता है? हम तो झाड़ू पार्टी या भाजपा? झाड़ू पार्टी, सही बोल रहा है, झाड़ू पार्टी। किस वजह से? बस अभी ये देखो, झाड़ू पार्टी सब चांस दे रहे हैं, सामने से बोल रहे हैं, देखो इसको एक बार आजमा लेते हैं क्या हो रहा है। बाकी तो इतना सालों में हम सबको आजमाया, कुछ नहीं होता है। इस बार इसको हम यूज करते हैं, इसको हम सबको आजमाना है। आप बताओ। सबको मौका मिला, सबको मौका मिला चाहिए सबको। 5 साल हो 5 दिन का, 5 दिन का नहीं है, 5 किसको मौका देना चाहिए? राजस्थान आपके केजरीवाल को ही है। अच्छा, किस वजह से? वो अभी नया है, देख के उसको देखते हैं। जो बीजेपी किया वो कुछ किया भी नहीं, इसने कांग्रेस को कुछ किया नहीं। आप बताइए। मेरा कहने का मतलब यही है, ना ही केजरीवाल को कोई एक्सपीरियंस है, और भाजपा को भी इतना 27 साल का घमंड आ चुका है कि वो ऐसे सोच रही है कि हम जो करेंगे वही सही है, मगर वो गलत है। मैं ये चाहता हूँ कि एक बार कम से कम बदलाव चाहिए, और या तो बसपा या तो समझ लो कांग्रेस, दोनों में से एक को मौका देना चाहिए। बसपा सरकार थोड़ा ना बना सकती। अरे नहीं, क्यों नहीं बना सकती? अगर समझ लो कोई भी पब्लिक एक हो सकती है, तो कभी किसी को भी गिरा सकती है। 90 सीटें थोड़ी ना आ जाएंगी बस? अरे 90 नहीं, 184 आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती? पब्लिक के हाथ में है ना मैडम, बरोबर। ये कोई किसी के हाथ में ऐसे मैं बोलूँ कि नहीं मेरा बीजेपी आएगा, वो बात गलत है, बरोबर। किसी को भी उठा के ये तो आप किसको मौका देना चाहते हो? हाँ, बसपा या कांग्रेस? मैं तो कांग्रेस को बोल रहा हूँ। अच्छा, आप कांग्रेस को दोगे, पर बसपा का भी आपने प्रचार कर दिया, रगे हाथ यहाँ पर। तो बसपा का अच्छा, आप बताइए, आपको कौन सही लगता है? कांग्रेस। किस वजह से? 27 साल से मेहनत कर रही है, और कांग्रेस की वजह से ही सब कुछ है। जिस स्कूल में नरेंद्र मोदी पढ़ा था, वो भी कांग्रेस ने ही बनाई थी। अच्छा, डेवलपमेंट टोटली उसी का है। तब तो जब मोदी जी पढ़ रहे थे तब तो भाजपा थी नहीं, तो कहाँ से भाजपा बना देती उनका स्कूल? मोदी क्यों नहीं थी? भाजपा आज से थोड़ी है, काफी सालों से ना। अरे 1980 से है, मोदी जी स्कूल में जब थे उस वक्त थोड़ा ना कोई भाजपा। पता ही नहीं, जिस रेलवे स्टेशन पे चाय बेच रहे थे वहाँ पे, जहाँ पे जो बिजनेस कर रहा था, कांग्रेस की, तो और कौन बनाएगा? हाँ, तो कांग्रेस ने ही तो किया है सब कुछ। अच्छा, तो आप कांग्रेस को मौका देना चाहते हैं? भाजपा कह रही है देखो हमने ये फ्लाईओवर बना दिया यहाँ पे। तो ये तो काम है उनका। अगर कांग्रेस होती तो कांग्रेस बनाती, ये तो काम ही है। तो स्कूल बनाना भी तो कांग्रेस का काम था। काम ही है, उनका ही है ना। हम ये नहीं कह रहे, मतलब डेवलपमेंट के नाम पे जो बात हो रही है कि हमने गुजरात को बनाया, गुजरात को तुमने नहीं बनाया, गुजरात को आम आदमी ने बनाया। तो आप कांग्रेस को मौका देना चाहते हैं। आप बताइए भाई साहब, आपको कौन सही लगता है इस वक्त यहाँ जामनगर से? कांग्रेस। किस वजह से? महंगाई बहुत बढ़ गई है, भाजपा कुछ कर नहीं रही है, बीजेपी यहाँ पे, ठीक है। कांग्रेस आएगी तो कुछ अच्छा होगा ना। ये बीजेपी तो कुछ कर नहीं रही है, ऐसे घूम रही फिर रही है, कुछ नहीं कर रही है, ठीक है। जब लिया कुछ बदलाव होगा तो कुछ अच्छा होगा यहाँ पे। ये तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। एक गढ़ हो, इसलिए तो कुछ कर नहीं रहा है ना, गढ़ बना के बैठ गए यहाँ पे। कुछ करो या ना करो, वोट तो मिल जाएगा, लेकिन एक बार बदलाव करके दिखा देंगे तो पता चलेगा ना, गढ़ ऐसे नहीं बनता है। कुछ बदलाव करो तो गढ़ होता है। आपको कौन सी पार्टी पसंद है? कांग्रेस वाले। किस वजह से? क्यों? कांग्रेस वाला काम करते हैं इसलिए। और जो यहाँ पे अभी आपका विधायक है वो भाजपा का, उसने काम नहीं किया? किया ना, सब किया।
तो आप कांग्रेस को मौका देना चाहते हो, और जो झाड़ू पार्टी है, आप पार्टी, ये ना भी देता है। तो सबसे पसंद है वो कांग्रेस है। आपको कौन पसंद है पार्टी? अभी कांग्रेस को पसंद है। किस वजह से? महंगाई की वजह से। हाँ? महंगाई बहुत है भाजपा में, सरकार में महंगाई की, गरीब आदमी मर जावे, पैसे वाले बढ़ जावे, नेता भी पैसे वाले बन जावे, भिखारी जो बीच में होते हैं ना वो मर जाते हैं। इसके लिए तो दोबारा कांग्रेस को मौका देना चाहते हैं। और आप पार्टी जो है, आप पार्टी तो नई पार्टी, बस क्या भरोसा, तो वचन तो देती है, काम करेगी नहीं करेगी। भाजपा कहती है हम आपको राशन देते हैं और राशन मिलता है हर महीने। महंगाई की करके देती है। ये हमको नहीं चाहिए, नहीं देना तो नहीं, बंद कर दे। हाँ, ये नहीं चाहिए, महंगाई कम करो। आप बताइए, आपको कौन पार्टी पसंद है? बीएसपी। किस वजह से? वो अभी वार्ड नंबर 6 में है ना, इस साल 3 कोऑपरेटर है, सब काम करते हैं इधर। तो हम तो बीएसपी को ही वोट करेंगे। अच्छा, पर सरकार उनकी बन पाएगी? अरे बन जाएगी, आज नहीं तो कल बनेगी। कांग्रेस। किस वजह से? वो काम करवाता है ना। और आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी का तो अभी नवा आया है, तो काम तो कुछ किया नहीं है, अभी करेगा तो पता चलेगा अभी। और भाजपा? भाजपा ने भी काम नहीं किया, आधा काम किया, आधा नहीं किया है। तो अभी कांग्रेस को ही मौका देंगे। आप बताइए कौन पार्टी सही है? कांग्रेस। आप? ठीक है, कांग्रेस सही है। कई लोग मौका देने को बोल रहे हैं नई पार्टी को। हम तो आपको देंगे। कहा से सब लोग तो यहाँ कांग्रेस कर रहे हैं। नहीं, ये भी आपको देने वाली है, ये तो खाली ऐसे बोलते हैं कांग्रेस। अच्छा, हाँ, सिर्फ आप और कोई नहीं। तो ये अगर आपको देने वाले हैं तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हैं? अब यही तो इनको पूछो आप। बताइए भाई, क्यों डरते हैं आप बोलने से? डरने की कौन सी बात है? तो बोल दो आपको देने वाले। नहीं। अरे आप उनको फोर्स क्यों कर रहे हैं? आप बताइए कौन बेहतर लगती है? आम आदमी बेहतर लगती है, उसकी वजह अभी थोड़ा ये पंजाब है, दिल्ली में सब में बिजली फ्री दिया है, पानी फ्री दिया है, और काम भी कर रहा है। और यहाँ तो बीजेपी आने के बाद बहुत महंगाई बढ़ गया अभी। और कांग्रेस जो अभी पूरा प्रचार करके गए, कांग्रेस प्रचार करके गया, ठीक है। अभी हम लोग तो थोड़ा सोचे हैं कि हमको भी मौका देवे, आम आदमी अभी थोड़ा अच्छा कर रही है। It's only after coming to Gujarat that I have actually realized what is the etiquette of drinking tea over here. It's a daily ritual where people come, sit, have a chat with a cup of chai, and if any new person joins your group, you have to have another round dedicated to the new entrant. ये बताइए कि अब जब आप लोग सब चाय पे चर्चा करते हैं, तो कौन सी पार्टी अभी आपको सबसे ज्यादा पसंद है? भाजपा, बीजेपी। किस वजह से? काम की वजह से, उसका काम दिखता है, जो उसका काम करने का तरीका है वो भी सब अच्छा लगता है, दिखता है हमको। पर यहाँ पर हर बार नया उम्मीदवार खड़े करते हैं, मुख्यमंत्री चेंज कर दिया। अगर सब कुछ इतना अच्छा चला तो सब कुछ चेंज क्यों कर दिया? चेंज, परिवर्तन चाहिए ना। थोड़ा बहुत बदलाव तो चाहिए ही। तो काम अच्छा चल रहा है तो परिवर्तन क्यों? लेकिन वो जनता, पब्लिक को पसंद नहीं है ना, पब्लिक को अच्छा नहीं लगता है, उसकी वजह से। पर फिर भी आपको लग रहा है कि मेरे को अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है। आपको कौन पार्टी अच्छी लगी? भाजपा। क्यों? उसे डेवलप ज्यादा किया है 10 साल में कांग्रेस ने। अच्छा, आपको कौन सी पार्टी सही लगती है? भाजपा। यहाँ पर बाहर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि उनको महंगाई से त्रस्त है। सामने काम भी दिखता है ना, महंगाई है लेकिन काम भी है ना। सब रोड अच्छे बनते हैं, ये अभी फ्लाईओवर बन रहा है तो ट्रैफिक कम हो जाएगा। पर जो यहाँ पर विधायक थे उनको तो बदल दिया, नए उम्मीदवार खड़ा कर दिया। अगर सब कुछ इतना अच्छा था तो बदल क्यों दिया? वो तो अभी जनता का सोच अलग है, कुछ सबका सोच अलग अलग रहता है। तो आप उम्मीदवार को देख करके वोट करते हो, या भाजपा को देख के करते हो, या मोदी जी को देख के? मोदी जी को देख के। मोदी जी को। आप बताइए। मोदी जी को देख के वोट करते, भाजपा को। भाजपा। और जो बाकी उम्मीदवार हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि परिवर्तन होना चाहिए। ये परिवर्तन तो हो रहा है, अभी कहाँ विकास हो रहा है, वो काम हो रहा है। बोल रहे हैं वो तो उनके लिए बोल रहे हैं, वो तो खुद के लिए बोल रहे हैं परिवर्तन चाहिए, हमको तो यही बराबर है बस। भाजपा। कौन सी पार्टी आपको बेहतर लगती है? अभी के दिन से बीजेपी लग रही है। मैं क्यों? काम दिख रहा है, पिछले 15 साल से रूलिंग पार्टी है, हम लोग ने डिफरेंस देखा है। हम लोग, हमारे पेरेंट्स बोलते थे, वो जो सिनेरियो हमने गुजरात का देखा है और जो आज हम देख रहे हैं उसमें बहुत फर्क है। मैं तो परिवर्तन चाहता हूँ। अभी भाजपा में महंगाई बहुत बढ़ी है, छोटे आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया अब रहना, महंगाई का दर बहुत ही बढ़ा है। तो कौन सी पार्टी आपको उम्मीद दिखती है? अभी तो कांग्रेस से आप
कोई भी परिवर्तन लाए तो। लेकिन भाजपा में तो अभी महंगाई दर बहुत ही बड़ा है, एक ये इश्यू बड़ा है भाजपा के लिए। तो दोनों पार्टी में कौन बेहतर लगता है आपको, कांग्रेस और आप में? कांग्रेस। आपको कौन सही लगती है? हमको तो लगता है कि केजरीवाल को एक मौका देना चाहिए। किस वजह से? इस वजह से कि दिल्ली में भी अच्छा काम किया है, पंजाब में भी अच्छा काम किया है, तो हमको ऐसा लगता है कि आज तो गुजरात में जो अच्छा काम नहीं हुआ तो शायद केजरीवाल आए तो अच्छा काम हो सकता है। आप बताइए, आपको कौन सही लगता है? एक मौका केजरीवाल को देना चाहिए, महंगाई सबको पब्लिक को पता चले। वही केजरीवाल को एक मौका देना चाहिए। हाँ, प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब आप भाजपा को वोट देंगे तो नरेंद्र मोदी को वोट देंगे तो काम होगा, क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी के नाम से तो वोट सही है, लेकिन जो बाकी जो है ना वहाँ से सब हो जाता है। करप्शन रेट बहुत बड़ा है भाजपा सरकार में। आपको कौन सही लगता है? भाजपा बीजेपी विकास किया है बहुत जबरदस्त, विश्व भर में मोदी का नाम है, बहुत प्यारा लीडर है और गुजरात को गौरव लेना चाहिए कि ऐसा सनिष्ठ प्रधानमंत्री हमारे गुजरात का है। पर आपके तो यहाँ पे दसियों लोग कह रहे हैं कि महंगाई है और करप्शन है। महंगाई तो विश्व में सभी जगह है, कोरोना की वजह से विश्व बर्बाद हो गया है, लेकिन मोदी की वजह से हमें बहुत कुछ कम इफेक्ट हुआ है और हमारा देश आगे बढ़ता रहा है। आपको इस वक्त कौन लग रहा है पार्टी सही? आएगी तो भाजपा आएगी जो, बट आपको कौन सा सही लगता है? हमको तो कांग्रेस सही लगता है। आपको कांग्रेस सही लगता है, पर आप मान के बैठे हैं कि भाजपा जीतेगी, क्यों? क्योंकि इस बार जो कांग्रेस में जो वो क्या बोलते हैं जो है उसको अभी कोई पहचानता नहीं है। अच्छा। इसीलिए तो आपको लगता है कि अगर जो लोग परिवर्तन भी चाहते हैं उनको कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मिल रहा है? हाँ, वही बात है। जो ऊपर से जो जिसको टिकट दे दे वही सबको मानते हैं, लेकिन जो लोक नेता होता है उसको टिकट नहीं देते। इस बार भाजपा में भी ऐसा हुआ है। आपको कैसा लगता है, कौन सी पार्टी सही लगती है? मेरे को तो कांग्रेस ही सही लगती। किस वजह से? शांति है कांग्रेस में, इतनी महंगाई नहीं थी जितनी अभी है ना, वो बस और कुछ। आप? कांग्रेस। किस वजह से? यही सेम महंगाई सब ज्यादा जो बताया वही। आप क्या काम करते हैं? मैं आईटी में हूँ। अच्छा, तो प्राइवेट नौकरी में भी आपको असर पड़ रहा है अभी ये महंगाई वगैरह का? सबको हो रहा है ना, आपको भी तकलीफ है, हमको भी हो रही है ना। और आम आदमी पार्टी विकल्प के तौर पर उम्मीदवार नहीं है उसमें कोई, नहीं जानकारी नहीं है उसकी कुछ। So here's what one can gauge from Jamnagar as an example. The BJP recognizes the voter fatigue that may have set in from over 25 years of uninterrupted BJP rule. The change in faces is done keeping that in mind. But how will Saffron Party deal with the bubbling resentment over rising prices? Congress's performance depends entirely on their individual candidates and whether they can pull off a win on their own steam. And finally, the Aam Aadmi Party has created a space in people's conversations, but not too many are willing to commit to voting for it just yet. Or are they too scared to admit it publicly? With Vijay Gopal Dutt, Padmaja Joshi for Times Now.